First of all, we are going to start with the homework we had yesterday. Higher than the clouds. The tallest building in the world. Read about Burj Khalifa and complete the questions with the correct question words. Higher than the clouds. बादलों से भी ऊंचा, आसमानों से भी ऊंचा. Higher than the clouds. Clouds, when you see the word cloud in English, it doesn't always translate as badal. Sometimes the word clouds can be translated with the word asman as well in Hindi. Okay. Be flexible in your mind. Don't memorize clouds means badal. Yes, it is true that the thing that we see floating in the sky, that is for clouds. But sometimes you will notice that there will be expressions in English which will be translated not with the word badal, but with asman, and you cannot do anything about it. Okay. उसका दिमाग आजकल 7वें आसमान पे रहता है. उसका दिमाग आजकल, it means he has got his head in clouds. If you have your head in clouds, that's the expression, I think. It means you are very arrogant. Head. In the clouds. Yes. Good morning, sir. Oh. No, that's different. Hello, good morning. Srishti, good morning. This is different. To be absent-minded, to be impractical, yes. Okay, if you've got your head in the clouds, then you are impractical. Okay. We'll search all the idioms with the word head, with the word clouds. Okay. Fine. So, higher than the clouds. If you have got your head in the clouds, then you are being impractical. You know, usually people who are in love, they have their head in the clouds, right? Okay. Read about Burj Khalifa. Where is Burj Khalifa? In Dubai. Question number 2. When did it open? When did it open? In January 2010. 3. How high is it? How high is it? 828 meters. 4. How many floors are there? How many floors are there? How many floors are there? 5. How much did it cost to build? How much did it cost to build? And 6. What time does it take to clean all the windows? What time refers to the time in the clock, beta? What time question word refers to the time in the clock?
What time do you get up? What time do you go to bed? What time does your class start? Okay, what time do you, have dinner? So what time refers to a time in the clock. But here we are talking about a period of time. 4 months is a period of time. And actually, the question is there in the exercise itself. Take a look here. Question number 1 in part 3. Isn't it? How long did it take to build the tower? And the answer is, how long does it take to clean all the windows? Can you see the similarities in both the questions? Both the questions answer a period of time. How long does it take to clean all the windows? 4 months. Number 2, part 2, complete the sentences. It is tallest building in the world. It is the tallest building, Ruxan. It is the The tallest tallest. building. Yeah. It is the tallest building in the world. 2, it has the the fastest lift in It the has the world. fastest lift in the world. and 3, It has highest moat and swimming pool in the world. you made the same mistake, Ruxan. Again, you made the same mistake. Number 1, it is the tallest building in the world. The tallest. Tall, taller, the tallest. It is the tallest building in the world. No building is taller than this building. No building is as tall as this building, Burj Khalifa. It is the It is tallest the building. 2, it has the fastest lift in the world. And 3, it has highest. Ruxar is repeating her mistake, not learning from her mistake at all. It has the It has the highest mosque. yeah It has the highest mosque. highest. Mosque is the worship place of the Muslims, for the Muslims, like Hindus It have has the temples. highest mosque and swimming pool in the world. It has the highest mosque and swimming pool in the world. Yeah. 3, answer the question. How long did it take to build the tower? It took 6 years or to build. How long did it take to build the tower? 6 years. 6 How years. long did it take to build the tower? 6 years to build. Ruxar, Yeah, sir. you don't give me a lot of confidence this way. How long did it take to build the tower, Ruxar? Answer the question, Ruxar. How long did it take to build the tower? Uh, 6 years to build, sir. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खाने में कितनी रोटी खाते हो तो आपका जवाब क्या होगा? 2 rotis. I eat 2 rotis. मैं आपसे हिंदी में पूछ रहा हूँ, हिंदी में जवाब दीजिए। आप मैं 2 रोटी खाने खाती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितनी देर में खत्म कर लेते हो खाना? 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद आपको आगे कुछ बोलने का मन नहीं किया तो यहाँ क्यों आगे कुछ भी जोड़ रहे हो जबरदस्ती इसमें? आपसे वही सवाल पूछा जा रहा है ना, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू बिल्ड द टावर? Yeah. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू बिल्ड द टावर? रुखसार बेटा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू बिल्ड द टावर?
Rukhsar, Yes, sir. how long did it take to build the tower? 6 years. बात खत्म. Yes. अगर सेंटेंस बोला, it took 6 years. It took. बात It took खत्म. 6 years. 2. What is on the 76th floor? What is on the 76th floor? Swimming pool on the 76th Swimming floor. pool on the 76th floor. Again, I would like to listen to Rukhsar. The Rukhsar, what is on the floor. 76th floor? 76th floor. What is on the 76th floor, Rukhsar? Swimming pool. Okay, that's not the right way to answer it. Answer it the right way. What is on the 76th floor? सत्तरवें फ्लोर पे क्या है? Swimming pool. स्विमिंग पूल है, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? The कैसे बोलते swimming हैं? pool. The highest. There is a swimming pool. There There is. is a swimming pool. What is on the 76th floor? There is a swimming There is. pool. क्या है 76th फ्लोर पे? There is a There is a swimming swimming pool. pool. कोई पूछेगा 76वें फ्लोर पे क्या है भाई? स्विमिंग पूल है. Swimming pool है. There is a swimming pool, and it is this swimming pool is this swimming pool is the highest swimming pool in the world. This swimming pool is the highest swimming pool in the world. Is Taipei 101 taller than Burj Khalifa? Is Taipei 101 taller than Burj Khalifa? No. Rukhsar, don't hesitate. Answer. Is Taipei 101 taller than Burj Khalifa? 508 meters. Is Taipei 101 taller than Burj Khalifa? No. Excuse me, Nikhil, wait. रुखसार उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छे आंसर देना और कभी कभी ये भी नहीं पता चलना कि क्या पूछा जा रहा है. ये ऐसे फ्लक्चुएशंस हैं इनके परफॉर्मेंस में. दैट्स नॉट समथिंग आई अप्रिशिएट. My question, Rukhsar, is Taipei 101 taller than Burj Khalifa? Answer the question, Rukhsar. I'm waiting, Rukhsar. 95 kilometers away. Rukhsar, इसकी हिंदी करो. Is Taipei 101 taller than Burj Khalifa? इसकी हाइट क्या है? कहाँ लिखा हुआ है सवाल? मैंने कहा इस ताइपेई 101 taller than बुर्ज खलीफा. मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कुछ सुन रही हो. इस ताइपेई 101 taller than बुर्ज खलीफा की हिंदी है कि इसकी हाइट क्या है? No, sir. इस ताइपेई 101 taller than बुर्ज खलीफा? I didn't understand, sir. पहले क्यों नहीं पूछा मुझसे कि सर ये सवाल नहीं समझ में आ रहा? Yes, sir.
क्या लिखा है यहाँ, पढ़ना तो, इस सेंटेंस को पढ़ो तो। बुर्ज खलीफा इज टॉलर देन ताइपाई 101 इन ताइवान। Burj Khalifa तो is taller than Type 101 in Dawn. फिर हिंदी क्या हुआ? बुर्ज खलीफा 101 टाइप बहुत ज्यादा टॉलर देन। जब आपकी लैंग्वेज की समझ अच्छी नहीं होगी तो जैसे ही कोई प्रॉपर नाउन आएगा ना सेंटेंस में, अनफेमिलियर प्रॉपर नाउन, तो आपकी इंग्लिश बाहर चली जाएगी दिमाग से और आप ऊट पटांग बातें बोलने लगोगे। इसलिए अच्छा है कि आप ऐसे टेक्स्ट पढ़ते हैं इस कोर्स में जिसमें बहुत सारे नाउन्स आते हैं जो अनफेमिलियर हैं, प्रॉपर नाउन आते हैं जो अनफेमिलियर हैं, ये आपको चैलेंज करते हैं। रुखसार का सारा सीखना बेकार हुआ है वहां पे, उनका सारा नॉलेज उनको छोड़ दे रहा है और वो कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। अगर मैं कहूं ए इज टॉलर देन बी तो इसका क्या मतलब हुआ रुखसार? क्या सर? ए इज टॉलर देन बी। ए एक से ज्यादा। ए इज टॉलर देन बी। रुखसार जब आप क्लासेस नहीं करती हैं हाँ, तो क्या उस दिन का ऑडियो रिकॉर्डिंग देखती हैं? क्लास की रिकॉर्डिंग देखती हैं? कभी कभी देखती हूँ सर। ज्यादातर नहीं देखती हैं। जी। तो आपको लगता है कि अगर मैं एक ईंट का लेयर लगाऊं, बीच में गैप छोड़ दूं, तो उसके बाद फिर एक नया ईंट लगा सकता हूं? एक से नो सर। क्योंकि आप तो वही सोचती हैं, क्योंकि आप एक दिन क्लास करती है, अगर बाय द वे 2 दिन नहीं करी तो 2 दिन की रिकॉर्डिंग नहीं देखती, तीसरे दिन आप आती है क्लास में, क्योंकि आप समझ जाएंगी चीजों को। यानी कि जो गैप है वो मायने नहीं रखेगा, है ना? तो आपको ए इज टॉलर देन बी का मतलब नहीं समझ में आता रुखसार? एक से ज्यादा बड़ा सर। मुझे एकदम अच्छे से हिंदी बोली बिना कंफ्यूजन के, ए इज टॉलर देन बी। ए इज टॉलर देन। दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा। ए इज टॉलर देन बी का मतलब हो गया दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा बुर्ज खलीफा है। ए इज टॉलर देन बी का मतलब ये हुआ। मैं अभी आपसे क्या बात कर सकता हूँ, फिलहाल छोड़ देता हूँ आपको, आप रिलैक्स करें। अमिताभ बच्चन इज टॉलर देन अक्षय कुमार, मतलब समझ में आ जाएगा आपको, मुझे पक्का यकीन है। अमिताभ बच्चन इज टॉलर देन अक्षय कुमार। अक्षय कुमार से ज्यादा अमिताभ बच्चन बड़े हैं। बड़े या लंबे है? लंबे हैं यार। तो मतलब बड़ा भी होने लगा क्या? नो सर। आप तो ऐसे बता रही हैं, क्या बोलूं आपको। देखा दोस्तों, यही प्रॉब्लम हमारे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग के साथ, इमेजिनेशन नहीं होता। देख रहे हो, आपको क्या लगता है आप गुड उस दिन मॉर्निंग। जहां पर आप अटक करते हैं, आज ये जो अटक रही है और नीचे जगह अटकी, तो आज आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इनकी बेवकूफी। आपको समझ में आएगा ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको लग रहा हो कि इसे कैसे नहीं समझ में आ रहा है। सही बात है, ये समझना मुश्किल होता है कैसे कैसे नहीं समझ में आ रहा है। इनको पता है अमिताभ बच्चन इज टॉलर देन अक्षय कुमार, मतलब पता है कि अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार से ज्यादा लंबे हैं। और जब मैं कह रहा हूं ए इज टॉलर देन बी, तो इनको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब। यानी ऐसे स्टूडेंट्स को
कोई भी आप ऐसी चीज बोल के नहीं सिखा सकते जिसका रियलिटी से लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रियलिटी से ही सीखेंगे, क्योंकि इनके पास इमेजिनेशन नहीं है अनरियल चीजों को इमेजिन करके सीखने का। मैं जब बोलता हूँ अक्षय कुमार इज टॉलर देन, सॉरी अमिताभ बच्चन इज टॉलर देन अक्षय कुमार, तो इनके इंग्लिश का दिमाग काम कर जाता है वहां क्या बोला है मैंने, क्योंकि अक्षय कुमार को जानती हैं और अमिताभ बच्चन को जानती हैं, तभी इनका दिमाग काम करता है। और जब मैं कहता हूँ ए इज टॉलर देन बी, तो इनके इंग्लिश का दिमाग बंद कर देता है काम करना। कहते हैं क्या 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 बोल रही है, बुर्ज खलीफा सबसे लंबा, इसका मतलब हो गया भाई रुखसार, जब तुमने कहा अमिताभ बच्चन इज टॉलर देन अक्षय कुमार, इसकी हिंदी हुई अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार से ज्यादा लंबा है, तो ए इज टॉलर देन बी का मतलब क्या होगा? रुखसार बता सकती हो तुम, जहां तक मैं समझता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं, बस वही है कि इस्तेमाल नहीं कर रही। कोई चीज है लेकिन रखे हुए हो, इस्तेमाल नहीं कर रहे। चलो दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ। एडविन इज टॉलर देन सारा। अब बोलो तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या सर? एडविन इज टॉलर देन सारा। Edwin is taller. एडविन इज टॉलर एडविन देन सारा। एडविन एडविन सारा से लंबा है। ठीक है, अब बोलो ए इज टॉलर देन बी का हिंदी। ये बी से ज्यादा बड़ा है। फिर बड़ा बोली। सॉरी, लंबा है। ओके, अब मुझे बताओ, बुर्ज खलीफा इज टॉलर देन ताइपेई 1-1 का मतलब क्या हुआ? बुर्ज खलीफा ताइवान से लंबा है। तो दोस्तों अपना दिमाग यूज करें, शब्दों के अरेंजमेंट पर ध्यान दें, ऐसी स्थिति में ना पहुंचे जहां रुखसार पहुंच जाती हैं। ये आप सबका खुद के तरफ काम बनता है, फर्ज। रुखसार आप अपने आप से बात करिए और बाद में मुझसे बात करिए, यस सर। क्या होता है, क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं क्या समस्या आती है, आपको जितनी देर लगी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपने दिमाग में ए इज टॉलर देन बी, इसकी वजह क्या हुई? क्योंकि ये ए को वेरी ए ले रही कंफ्यूज, बट वेरी कंफ्यूज सर। है। इनके दिमाग में जो जिंदगी जो जानती है, दुनिया को जानती है, बस उसी से रिलेटेड रियल सेंटेंस आएंगे तो ही ये समझ पाएंगे। शायद यही वजह है कि मैं शुरुआत में बोलता हूँ आपको ये करने के लिए, याद करो, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, और जब आप सिर्फ सेंटेंस बोलते हो तो मैं कहता हूँ सिर्फ सेंटेंस मत बोलो, ठीक है, रियलिटी के बारे में बात करो, रियलिटी से कनेक्शन बनता है दिमाग में, उसके बाद आप जा सकते हैं आगे। अक्षय कुमार इज टॉलर देन गोविंदा, तो आपके दिमाग में अक्षय कुमार भी है, गोविंदा भी है, हाइट भी, तो आपको आसानी होती है इससे। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जहां पे आप ये भी महसूस कर लें ए इज टॉलर देन बी मतलब क्या होता है। ये चीज करने के बाद ये इतनी देर लगाई क्योंकि ये ए को ए लेटर ए मान रही थी और बी को लेटर बी मान रही थी। यस। इनको नहीं पता कि इंग्लिश में और लाइफ में आदमी ए और बी वेरिएबल्स, चीजों के लिए नाम भी रख दे सकता है। ए इज टॉलर देन बी, तो इसका एक मतलब निकला, क्या निकला भाई, यहाँ ए और बी लेटर्स नहीं होकर के क्या हुए, नाउन हुए, राइट। कि कोई ए कोई चीज है, बी कोई चीज है, और ए इज टॉलर देन बी। कीप ट्राइंग रुखसार। यस सर।
तो दोस्तों, इज ताइपेई 101 taller than बुर्ज खलीफा? अभी आप बता सकते हैं रुखसार? Is Taipei 101 taller than Burj Khalifa? 101. चलो छोड़ देते हैं. How high is it? बाद में बात कर लेंगे सर, आपसे टेंशन ना ले. How high is it? How high is it? It refers to which? इसकी हाइट क्या है? Taipei. It ref. No. It cannot refer to Burj Khalifa. It refers to Taipei 101. The reason is, what is the subject in the previous sentence? Taipei 101. Is Taipei 101 taller than Burj Khalifa? All right. So subject here is Taipei 101, right? Taipei 101 obviously is the name of another building. Is this building taller than Burj Khalifa? The answer is no, it isn't. How high is it? Then it refers to 101. Exactly. That's important. That's important to know. ये जो चैलेंज है रुखसार को सिखाने का, इसके साथ कौन फेमिलियर हो सकता है? सिखाने वाला. मुझे पता ही कितना बड़ा चैलेंज है. और ये स्ट्रगल किसके दिमाग में चल रहा है? रुखसार के दिमाग में चल रहा है. आप लोग विटनेस हैं इस चीज के. लेकिन जो लोग यहाँ नहीं हैं, उनको क्या पता कि रुखसार को सिखाने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? मुझे पता है उनको. उनके लिए रुखसार एक नॉर्मल स्टूडेंट है. रुखसार बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सीधी हैं, बहुत ही प्यारी हैं. वो कभी भी किसी बात का बुरा नहीं लेती, वो नहीं करती, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढती हैं. मैंने पर्सनालिटी गौर किया है. बहुत ही चीजों को ये भी एक नुकसान है कि रुखसार का अपना नजरिया कम डेवलप हो पाएगा इसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत ही सीधी है, सब बातें समझती हैं, सामने से जो बोला जाता है उनको मानती हैं. एक ओबीडियंट टाइप की बेटी रही हैं, अब एक वाइफ हैं. लेकिन इसमें एक नुकसान भी है. जो ज्यादा सीधा रहता है ना, उसका एक नुकसान ये होता है कि अपना दिमाग कम लगाता है चीजों में. ठीक है. सवाल ये है कि रुखसार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन क्या सारे लोग रुखसार की तरह होते हैं जो रुखसार की तरह होते हैं? नहीं. मेरा कहने का मतलब, ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे ही परेशानी से जूझते हैं जो रुखसार जूझ रही, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं अपने आप से, और वो चाहते हैं कि तुरंत सीख जाए, तो बहुत परेशान हो रहे होते हैं. राइट. उनको लगता है कैसे सही होगा. और कुछ के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बच्चे नहीं. उनके माता पिता कहते इतना समय बीत रहा है, नहीं काहे सीख रही है, नहीं काहे सीख रहा है. क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? उनको बैठाना चाहिए क्लास, उनके बैठो, देखो कितनी मुश्किल है. आप अपने बच्चे को जानते हो अच्छे से, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए. Some days ago there was something similar. Similar incident happened. There is a student I teach. She's a very slow learner, very slow learner. But you know me, I don't give up easily. I always encourage my students to keep trying. Okay. So when I was in her town, because she's an online student, when I was in her town, I decided to go meet her and encourage, because I thought that, meeting this teacher would definitely bring more energy to her, because it was the first time she was going to meet me in person. She has always known me online. So I went, I met. Her mother was very nice to me. You must realize and accept one thing, that parents have to take responsibility for the way their children are. Because the first school is home. Home is the first school. So whatever way your child has turned out, you have to take responsibility.
Her mother was nice. She understood. Her daughter was a bit slow to learn and things, She was worried about her, which is natural. Any mother would be worried. She's rather slow, you know. She doesn't learn very fast at all. She's not an average student. So her mother was very concerned. I tried to give her confidence. I said, yes, but you see, you have a role to play as a mother, You need to say inspiring things, motivational things in front of your daughter so that she doesn't feel that she is inferior or anything. If you react negatively, it will dent her confidence, it will damage her confidence. She understood quite a bit. Everything was great. They made me feel very welcome. When I was about to leave, then one of her relatives, that girl student's relatives, came and started questioning her slow improvement, why it was so slow. As a teacher, I was not doing enough, and this and that. She was very critical of me. She was actually just a typical parent, typical guardian who accuses the teacher when the child is learning slowly. One must understand that not all teachers are the same, right? But those who have spent time with me, they understand how much concerned I am. What was the need for me to spend so much time with Rukhsar? I could have moved on by answering the question correctly, right? But I spent time with her, tried to make her realize her problem. Most important, all this conversation must have made her feel that there is something wrong, right? Once she realizes something is wrong, she will try to find out what. Sometimes I don't understand difficult lines or You don't understand difficult line difficult sentences. Okay. lines. Yes. Okay. So what I was saying, that, when I spend time like this, it takes time, but students realize that there's something wrong. They're not using their mind so much. They start late, sooner or later. If I never tell them there is anything wrong, then they won't really work hard enough. Why is she struggling with this? Why can't she accept when she reads the sentence, Burj Khalifa is taller than Taipei 101 in Taiwan? Taiwan is a country people know. Burj Khalifa is taller than another building. Which building here? The name is Taipei 101. Why can't she accept a new name? Taipei 101 is a unique name. I know it is not a Taipei, typical name. Taipei in Taiwan, sir. Taipei. Just because there are unfamiliar words, Rukhsar goes absolutely out of her comfort zone. Okay. And that happens with a lot of students. I've told you. If you write a text about something that she knows very well, then she'll understand it. So she's not using her mind as much as she should. Okay. She will sooner or later. So when her mother, her guardian, the other relative, criticized me, I gave her a good, befitting reply. I did not take any of her comments or criticism lying down, because I'm very proud of the fact that in my class I take care of my weakest students too. I do not ignore them. I have them on my mind all the time, that I have XYZ in my class, and I keep an eye on how they are responding. And I know it's not very easy in the times when every teacher works for money. It's not very easy to take care of those students who are struggling. All right, Nikhil, don't yawn on the microphone. You can mute yourself when you're yawning. So, yes. अभी आप सब लोग को लग रहा होगा कि क्या हो रहा था, रुखसार को क्यों समझ नहीं आ रहा ये सेंटेंस। वो उसको जब समझ में आ रहा अमिताभ बच्चन इज टॉलर देन अक्षय कुमार, तो आपको लगेगा कि बस इस वजह से ताइपेई 101 नया नाम है, उसका सारा जानकारी जो है इंग्लिश का, अगर कोई लिखा है बुर्ज खलीफा इज टॉलर देन, तो उसके बाद किसी चीज से लंबी है बुर्ज खलीफा, वो चीज क्या है जिससे लंबी है बुर्ज खलीफा रुखसार?
बुर्ज खलीफा इज टॉलर देन ताइपेई 101। बुर्ज खलीफा लंबी है, राइट? ज्यादा लंबी, किससे ज्यादा लंबी है रुखसार? जी, यस सर। किससे ज्यादा लंबी, किससे ज्यादा लंबी है? टाइप टाइपी वन, ताइवान। ताइवान क्या है रुखसार? आई आई डोंट नो सर। मैंने कभी कहा है कि अगर थोड़ी बहुत दुनियादारी की नॉलेज हो तो इंग्लिश सीखने में आसानी होती है, क्योंकि आपको बात करनी पड़ती है दुनिया के बारे में इंग्लिश में। ताइवान का नाम नहीं सुना तुमने? नो सर। तो आप टीवी पे क्या देखते हो? रुखसार, टीवी पे क्या देखते हो? कपिल शर्मा शो। All the time. I mean, I also watch Kapil Sharma show. We all watch Kapil Sharma कॉमेडी show. कॉमेडी। आई वॉच कॉमेडी सीरियल्स सर। नॉलेज बढ़ाओ रुखसार, नॉलेज बढ़ाओ। यस। मैं जब बात करता हूँ तो एक तरफ से लगता है कितना प्यारा प्यारा सा लगता है, रुखसार की शादी हो गई, ये है वो है, प्यारी वाइफ है, प्यारी बेटी है ना, प्यारी बहन है, सब अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी बहुत ही मैं क्रिटिकल होता हूँ इन सब चीजों को लेके, कि इंसान को उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एहसास होती। उसको कुछ आपको एहसास करना होगा। आप इस दुनिया में रहते हो, आप सारे देशों के बारे में नहीं जान सकते, ये बात सही है। सारे देश के बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है बहुत। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है इस ताइवान के चक्कर में। पता है ना दोस्तों? चाइना उसको एनेक्स करना चाह रहा है, उसको अपने आप में मिलाना चाह रहा है। और कई देश उससे डरे हुए हैं इस बात से, क्योंकि ताइवान सबको क्या बेचता है? प्रोसेसर बेचता है, ठीक है, जो जिससे बनता है आपका ये कंप्यूटर और सारे मोबाइल सब कुछ। तो प्रोसेसर वो कौन बनाता है? ताइवान बनाता है। चाइना भी बनाता है, बट अगेन चाइना के साथ बहुत कंट्रीज का बहुत सारा प्रॉब्लम है। ताइवान बहुत ज्यादा बनाता है हाई क्वालिटी प्रोसेसर। तो कुछ कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई ये वहां से सब कुछ शिफ्ट कर लो बाहर, वो कर रहे हैं अमेरिका वगैरह, उसके बाद तुम ताइवान को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लोग सेल्फिश होते हैं, अमेरिका तो सबसे ज्यादा सेल्फिश है। तो रुखसार, जिस दुनिया में रहते हो उस दुनिया के बारे में जानो बेटा। ओके सर। इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लाइफ में जब तक तुम्हें ताइवान के बारे में नहीं पता है। अब ताइवान को हटा भी देते हैं तो टॉलर देन ताइपेई लिखा है, टॉलर देन ताइपेई। तो यस सर। ताइपेई से ज्यादा लंबा है तो बोलेंगे। ताइपेई के बगल में 101 लिखा है, फिर लिखा है इन ताइवान। तो ताइवान कोई जगह ही होगी, कंट्री भले ही ना पता चले, लेकिन कोई जगह ही होगी जहाँ ताइपेई 101 है। तो सीखते रहो रुखसार, और मेहनत करके सीखो, बिल्कुल लापरवाही मत करो, बहुत नुकसान होंगे। Sir, यस सर। I have ताकतवर। a question. यस आफरी। Sir, exercise one, question number two, why there is in January 2010? Then what do you want to say? When did it When did it open? open? हाँ, तो when did it open बेटा? In January 2010. Your audio is not very clear, Afrin. Are you using a microphone, external microphone? No, sir. Now it is better. Yes, talk now. Why there is in January, sir? आप Why क्या not चाहते on January? क्यों ऑन जनवरी क्यों करें हम? क्यों आफरीन ऑन जनवरी क्यों करें? आफरीन बात करो ना। Yes, sir. I'm confused, sir. क्या कंफ्यूज हो, किस बारे में कंफ्यूज हो?
Because कंफ्यूजन क्या है? when I say months, about months, so I say on January. कैसे? कब कब कहाँ सीखा ऐसे? कहाँ देखा? एक आध एग्जाम्पल दो जहां पर ऐसा देखा था, ऑन आया था जनवरी के पहले, या महीने के पहले ऑन आया है, ऐसा एग्जाम्पल देना तो। आफरीन, कहां पर देखा ऐसा? यहाँ देखना तो, टेक्स्ट में क्या लिखा है? ओपन इन जनवरी 2010। मुझे पता है वो कहां से आ रही है, आफरीन को कहां कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको बोलना पड़ेगा। आफरीन, म्यूट मत करो, जब बातचीत हो रही होती तो म्यूट नहीं करते बीच में। Yes, sir. हाँ बताओ, कहाँ ऑन कहाँ देखा? यहाँ भी इन ही लिखा है। Yes, sir. I'm confused. That's why I asked you. नहीं, ऐसे लाइन नहीं बोला था। आई एम कंफ्यूज, दैट्स व्हाई। कंफ्यूज होने के लिए आपको बताना पड़ता है कंफ्यूजन क्या है। गलत जवाब दे रही हैं आप कि आई एम कंफ्यूज। स्टूडेंट्स के कुछ एटीट्यूड में एक चीज होती है, वो जहां अगर आपने सवाल पूछा, ठीक, अगर टीचर ने सीधा जवाब दिया आपको बड़ी खुशी होती है। टीचर अगर पलट के जवाब दे तो आप डिफेंसिव हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। तो आप कहते हैं हमको कंफ्यूजन है तो पूछ ले, तो क्या गलत किए, ऐसा वाला एटीट्यूड आ जाता है मन में। No, sir. ठीक है, तो नहीं, ऐसे नहीं है। आपके कंफ्यूजन के वजह को समझना ज्यादा जरूरी है। आई बात में, कंफ्यूजन की वजह जानेंगे तो फिर उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो आप बताएं मुझे, कंफ्यूजन की वजह कहाँ है आपकी? आप बोल तो रही है कंफ्यूज है, किस बारे में कंफ्यूज है, कहाँ है कंफ्यूज का? अच्छा जरा देखिए तो, यहाँ पर आप कह रही हैं कि आप इन लगाती हैं, ऑन लगाती हैं। जरा याद करें ये यूनिट जो आपके सामने है, सॉरी 3.6, ये जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में पैदा हुआ, अभी भी आप एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ कोई ऐसी चीज आई आपके दिमाग में? 3.6. We do in our free time. 1. Anna. I play tennis a lot. I'm no good, but I like playing. When do you play? Oh, in summer I play every weekend. In summer. Just in summer? No, sometimes in spring and autumn too, if it's sunny. In spring and autumn too. 2. Roger. My favourite sport is skiing. I go skiing with my family every year. We all love it. When do you go? Always in January or February, after Christmas. क्या बोला उसने? In January और कहाँ से पैदा हुआ ऑन? मुझे बताओ ना, अभी तक तो बता नहीं पा रही हो तुम। ये ऑन आया कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? ये कंफ्यूजन कहाँ से आया? तुमने कहा हम कंफ्यूज। आई डोंट बिलीव यू आर कंफ्यूज। हम तो नहीं मानते कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि कंफ्यूज होने के लिए दो चीजें चाहिए। कंफ्यूज मतलब ये कि ये ऐसे कैसे? तो आपके दिमाग में ऑन कहाँ से आया है, ये सवाल है। कब आपने सुना ये ऑन होता है? एक आध जगह बताइए जहां आपने ऑन देखा था, वहां से आपके दिमाग में आ गया कि ये तो ऑन है, तो फिर आज इन कैसे? अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं? जनवरी, मई, फरवरी, दिसंबर। ओके, हाँ अफरीन, कहां से है वो कंफ्यूजन? जबरदस्ती का कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, वो जबरदस्ती का कंफ्यूजन है। मैं बताता हूँ कंफ्यूजन है कहां से, जो जवाब नहीं दे रही, और ये गलत बात है। स्टूडेंट को
डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। जब टीचर बात करे तो उसको और ज्यादा इंटरेस्ट लेकर अपनी बात बतानी चाहिए। और ये नकार तो दिया आफरीन ने, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, जब एक स्टूडेंट सवाल पूछता है, खास करके अपने आसपास की बात कर रहा हूं, अगर टीचर ने सीधे सीधे जवाब दिया उसको बड़ी खुशी होती है। अगर टीचर ने पलट के सवाल पूछा तो उसको बहुत बुरा लगता है। कई स्टूडेंट को बहुत बुरा लगता है हम पूछे तो सीधा बताइए ना, फिर इतना घुमा क्यों रहे, इतना सवाल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, No, इसको sir, अच्छा नहीं I लगता है। can't. तो I फिर मुझे can't बताया feel क्यों that. नहीं, बताया क्यों नहीं कि ऑन कहां से आया तुम्हारे दिमाग में? बोलो कैसी आ गया सर, कुछ तो जवाब दो। ऑन कहां से आया तुम्हारे दिमाग में? तुम जब किताब पढ़ रही हो, व्हेन यू आर रीडिंग द बुक, देन यू सी व्हाट। तुम मुझे बताओ क्या पढ़ी तुम यहाँ पे? यहाँ क्या पढ़ी पहले लाइन में? इन जनवरी, राइट। Yes, और तुम्हें sir. मैं इस किताब में अगर 10 एग्जाम्पल्स दिखाऊं जहां पर इन 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 लिखा रहेगा महीने के पहले, तो क्या बात करोगी? रुको, हाँ जी, हाँ, ये ऑब्वियसली। देखो तो, आओ यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आओ, देखो क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। जरा देखना किताब, पेज नंबर 45, 43। बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? 6 में क्या लिखा है? इन जून। ये आया कहां से इसके दिमाग में कि ऑन होता भी है? कब आया? ऑन सैटरडे, सही है। सैटरडे इज अ डे, नॉट मंथ। ओके, इन समर। अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारी जगह है, मतलब ये कंफ्यूजन नहीं है उनके दिमाग में भी जिनको इंग्लिश नहीं आती। क्यों नहीं है कंफ्यूजन? क्योंकि इसका हिंदी और इंग्लिश मैच कर जाता है। जैसे हिंदी में आप बोलते हैं संडे को, लेकिन इंग्लिश में बोलना पड़ता है ऑन संडे। थोड़ा परेशानी है, कंफ्यूजन है। लेकिन हिंदी में बोलते हैं जनवरी में, इंग्लिश में भी इन जनवरी, फरवरी में इन फरवरी। तो हिंदी बोलने वाले जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी ये वाला सही कर लेते हैं। तो कंफ्यूजन यहाँ कैसे आ सकता है? कंफ्यूजन वहां आता है ना जहां पे आपको आपकी मदर टंग से कुछ अलग करना पड़ता है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे आया कंफ्यूजन, कहां से आया? बताओ ना, बता क्यों नहीं रहे? और खाली कह रही नहीं नहीं नहीं, लेकिन बता नहीं रही है कि कहां से आया कंफ्यूजन। चलो और देखें, यहाँ आओ, यहाँ देखो बेटा, बेटा देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या लिखा है? ऑन अक्टूबर 25। Yes. यहाँ क्या लिखा है? ऑन अक्टूबर 25। ये On महीने की बात हो रही है, महीने की बात हो रही है। Yes, sir. बताइए अफरीन, किस चीज की बात हो रही है? महीने की बात हो रही है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. अरे नहीं यार, कितना फिर महीना बनाओगे? अक्टूबर 25 महीना है? No, sir. अक्टूबर It's 25, years. Years. अक्टूबर Years. 25 इज Years. ईयर है, अक्टूबर 25 साल है। Day, sir. Sorry. ऐसे ही करके ऑब्जर्व करना पड़ता है बच्चे। अक्टूबर 25 क्या है? दिन है, तो दिन के पहले क्या लगाते हैं? On. यस, ऑन अक्टूबर 25। अभी Yes, आपको sir. और भी बता सकता हूँ। हाँ बताओ बेटा। That is confusion, sir. मुझे And तो now पता था I ना। understood. Yes, sir. फिर वही वाला बात, मुझे ना खुशी है कि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया, ना मुझे परेशानी थी कि तुम्हें कंफ्यूजन था। मैं अभी भी नाराज हूं इस बात से कि तुम अपनी बात अच्छे से नहीं बताएंगे। तुम नहीं बोली कि कई बार मैंने ऑन देखा महीने के पहले, पहले बोलती ना Yes, कि मैंने sir. ऑन देखा महीने के पहले, इसलिए पर कंफ्यूज हूं। तो मैं बोलता ऑन, तुम जब ये बोलती मैं तो वेट कर रहा हूं बोलने का। फिर से बता रहा हूं, आप भाषा सीख रहे हो ना, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो अपनी। भाषा का यूज कहाँ होगा? कम्युनिकेट करने में ना। और कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं आपके पास, तो आप भाषा का क्या करोगे?
नई भाषा का क्या करोगे? जब मैं लगातार पूछ रहा हूं कंफ्यूजन कहां से आया? एक बार तुमने सुना आफरीन के मुंह से कि मैंने ऑन देखा है महीने के पहले? तो मैं जैसे ही बोलती, मैं कहता बेटा उसके बाद डेट भी लिखा होता है कि आप ऑन देखोगे ना तो उसके बाद क्या लिखा रहेगा? डेट। जैसे जुलाई द फर्स्ट क्या है? महीना है कि दिन है? दिन है। तो जुलाई द फर्स्ट के पहले क्या होगा? ऑन जुलाई द फर्स्ट या इन जुलाई द फर्स्ट? On July जुलाई the द On फर्स्ट। July the 1st. December 25th क्या है? मंथ और डे? So you will write on December 25th or in December 25th? on December. On December the 25th or 25th, whatever, American way, British way, whatever. So obviously, लेकिन आप आफरीन क्यों नहीं जवाब दे देती कि सर मैंने ऑन देखा है? क्यों नहीं बोलनी आप ये? आई एम कंफ्यूज क्यों खाली बोलने जा रही थी? जब मैंने पूछा कंफ्यूजन कहां से आया, तो बोलती कि सर ऑन भी देखा मैंने और इन भी देखा महीने के पहले, तो हम कंफ्यूज हो गए। जवाब दिया था तुमने आफरीन, और फिर तुम म्यूट करके बैठी हो जब तुमसे बात कर रहे हैं। पहले भी कहा No, sir. बात There हो is रही है। noisy, sir. That's why. I have not complained about the noise. I have not complained about the noise. I have not complained about the noise. So you don't need to worry about it. And when we are having a conversation, then it's very important that you say your share of things from your side. Okay, Yes, sir. fine. Confusion sorted, because a lot of students don't look at the date there. They look at on before the month, but they don't realize that after that there is a number. That number makes it not a month, a date. Gandhiji was born on October the 2nd or in October the 2nd. And On second October. hata do. On October. He was born in October. Okay. Now let's read the text. I appreciate people asking questions, but they should be able to communicate properly about their confusion, where it started. How much does the top of the building? Oh, no. How long? Number 2, it has the fastest lift in the world. Number 3 में लगातार रुखसार बोले जा रही थी, it has highest mosque. तो मैं वापस ले जाकर के नंबर 1 और 2 को करवाया था, the tallest building, the fastest lift, और फिर भी तीसरे में वो फिर बोल रही है highest. इसको कहते हैं नहीं ऑब्जर्व करना। द लगा रहे हैं हर बार हम लोग किसके पहले? सुपरलेटिव के पहले। और इसको रट्टा नहीं मारना, इसको महसूस करना है क्यों कैसे है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, बाकी सारे बिल्डिंग से लंबा। द टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, मतलब कोई उतना ज्यादा लंबा नहीं। नहीं है। ओके, नहीं। तो बाकी और बिल्डिंग्स भी आ गए ना पिक्चर में, Yes. ठीक है, और उन सारे बिल्डिंग से ये ऊंचा। द फास्टेस्ट लिफ्ट, दुनिया में जितने भी लिफ्ट हैं वो सब आ गए इस पिक्चर में, वो सब इससे स्लो। it has the fastest lift. Now number 3, it has the highest mosque and swimming pool in the world. Exercise 3, answer the questions. How long did it take to build the tower? It took 6 years. What is on the 76th floor? What is on the 76th floor? There is a swimming pool. हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में नहीं आ सकता। What is on the 76th floor? There is a swimming pool. Is Taipei 101 taller than Burj Khalifa? No, it isn't. How high is it? It's 508 meters. It was the tallest building before Burj Khalifa became the tallest. Yeah. Who's Bill Baker? Who is Bill Baker? He is a buildings structural engineer.
is the buildings structural engineer. बेटा he is the buildings which buildings? The building. A building और the building मतलब क्या होता है बेटा? A मतलब कोई भी और the मतलब एक कोई खास. यहाँ कौन कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है? बुर्ज खलीफा. तो बुर्ज खलीफा कोई भी बिल्डिंग है, कुछ जो बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ क्या बोलेंगे? A buildings या the buildings? He is the buildings structural engineer. आप चाहे तो बुर्ज खलीफास बोल सकते हैं. He is बुर्ज खलीफास a structural engineer. Okay. What was the most difficult problem? With the design. Most difficult problem was the कम winds. से कम बंद कर दो रुखसार, कम से कम ये बंद कर दो जो कर रही हो. ये जो बच्चों की तरह कॉपी पेस्ट कर रही हो इसको बंद करो और महसूस करना शुरू करो प्लीज. तभी तुम सीखोगी बेटा. तुम कब इस बात को रियलाइज करोगी कि कोई स्कूल नहीं है जहां से 8वीं क्लास 10वीं क्लास पास कर लेंगे उसके बाद कोई लेना देना नहीं रहेगा. ये स्किल तुम्हें तुम्हारे साथ रखना है इंग्लिश बोलने का. कुछ भी मत बोलो जो तुम्हें वहां से दिखता है. महसूस करो पहले बातों को. ठीक है. जवाब किताब में नहीं दिखना चाहिए, जवाब दिमाग में पैदा होना चाहिए पढ़े होने की वजह से. कुछ स्टूडेंट्स नजर बनाए रखते हैं टेक्स्ट पे, यहां से जवाब देते हैं. बात समझ में आ रही है? कुछ स्टूडेंट्स टेक्स्ट पढ़ते हैं, वो जानकारी यहाँ जाती है, जब कोई सवाल पूछता है तो यहाँ से जानकारी जवाब में बदल के आती है. इज दैट क्लियर? बात समझना. टेक्स्ट पढ़ते हैं तो जानकारी यहाँ जाती है पहले. ठीक. फिर जब सवाल पूछता है कोई तो यहाँ से कनेक्शन बनता है सवाल का. फिर किताब थोड़ी देर के लिए साइड है, यहाँ से जवाब देते. वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं. लेकिन जो लोग यहाँ टेक्स्ट पढ़ते हैं सामने किताब में, यहाँ सवाल आता है वहां से देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं चल रहा होता है, उनका इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा है. वो क्वेश्चन आंसर जरूर कर रहे हैं जैसे हमेशा किए स्कूल में 10 साल, कुछ सीखा नहीं होता है. राइट. वैसे ही यहाँ आप वो गलती ना करें. तो रुखसार आप जवाब ना भी देंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको महसूस ना हो कि आप क्या बोल रही हैं. जब महसूस करें तब ज्यादा बेहतर है जवाब देना. सिर्फ नहीं जवाब देना ऐसे ही है पढ़ करके. ठीक है. महसूस करना जरूरी है. What was the most difficult problem? ऐसे जवाब सही नहीं है ये. What was the most difficult problem? Yes. Now you are answering correctly. What was the most difficult problem, guys? Srishti beta, Kanak beta, Nikhil, what was the most difficult problem? The most difficult problem was the winds. The most difficult problem was The winds. the winds. Exactly. The most difficult problem was the high winds. Okay. How much does the top of the building move in the wind? अच्छा, यहाँ पर जो फेल हुआ ना एनालिटिकल एबिलिटी और इंग्लिश की वजह से, ट्रांसलेशन करवाएंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली कर देंगे सारे सेंटेंसेस की. ठीक है. लेकिन कुछ एनालिटिकल एनालिसिस होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं. कई चीजें गलत समझ जाते हैं. जो लोग डिजाइन बोल रहे हैं ना, वो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है. हिंदी में भी आता है पैसेज. हिंदी में भी पैसेज आता है एग्जाम में कि हिंदी का पैसेज है और उसी पैसेज के दम पे क्वेश्चन आंसर करने होते हैं ना. तो क्या आप हिंदी की पढ़ाई करते हैं तो क्या सीखते हैं? वो जो पैसेज होता है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको समझना होता है. राइट. लैंग्वेज ग्रांटेड है, लैंग्वेज तो है ही आपके पास. वो पैसेज जो आप लोगों ने कभी भी हिंदी में किए होंगे एग्जाम में, पैसेज पढ़ के उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर किए होंगे एग्जाम में, चाहे कंपटीशन के एग्जाम चाहे स्कूल के एग्जाम. अगर कोई जर्मन या चाइनीज करना चाहे तो बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि उसको तो पहले लैंग्वेज में ही चैलेंज आएगा. वो जब लैंग्वेज सीख जाएगा तब जाकर के देखेगा कि क्या है. क्योंकि आप तो लैंग्वेज मदर टंग है आपकी हिंदी, फिर आपसे क्यों पूछा जाता है? वो देखते हैं कि आप कितना समझ रहे हैं बातों को उसमें लिखी हुई. तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश की खाली प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश के साथ साथ बातों को समझने की प्रॉब्लम भी है. ये मत समझना कि सिर्फ इंग्लिश की प्रॉब्लम है, इंग्लिश आ जाएगी तो सही हो जाएगा. नहीं.
आपको हिंदी तो आती है ना, मदर टंग है ना आपकी हिंदी, फिर हिंदी के पैसेज देते ही क्यों है वो? क्योंकि बावजूद इसके कि आपको हिंदी आती है, आप चीजों को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। वहां एनालिसिस का फेलियर होता है। हर एक आदमी, अच्छा बेटा ऐसे समझो, एक सिचुएशन है, एक परेशानी है घर में, चार लोग चार तरह से उसको देखते हैं, हाँ या ना? चार लोग चार सॉल्यूशंस बताते हैं, चारों उस परेशानी को देख रहे हैं, और किसी किसी का सोल्यूशन एकदम बेकार सोल्यूशन होता है। तीन लोग एकदम तुरंत रिजेक्ट कर देते, कहते दिमाग खराब है तुम्हारा। ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी के सलाह को, किसी के सोल्यूशन को उस सिचुएशन में तीन चार लोगों ने एकदम तुरंत खारिज कर दिया होगा, ये बोलते हुए दिमाग खराब है, पकला गए हो, फालतू बात करते हो, ऐसा होगा। यानी कि तुमने उस इंसान ने जिसने ये सलाह दी थी, उसने सारे एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दिया था। फिर कोई एक सलाह देता है तो उसके बारे में बात होती है कि हाँ इसमें सही है, लेकिन एक समस्या है, उसके बाद फिर एक बात बताई जाती है, ठीक। और फिर कोई एक ऐसा सलाह देता है जिसको सब लोग कहते हैं हाँ ये सबसे अच्छा रहेगा करना। ऐसा हुआ होगा लाइफ में। तो ये चार लोग में क्या फर्क है? ये चार लोग में फर्क है ऑब्जर्व करने का, एक सिचुएशन को हर एक एंगल से। आप इसमें से किस आदमी को हेड बनाना चाहोगे? उसको जो पहले सलाह दिया और जो जिसका सलाह सब लोग रिजेक्ट कर दिए तुरंत बेवकूफ बता करके कि बाप पागल हो गया, ऐसा उसको कभी हेड बनाना नहीं चाहेंगे हम लोग, राइट? लाइफ में ऐसे हम सबके इंसानों के पास ये एनालिटिकल एबिलिटी होती है, उसका भी टेस्ट होता है। चलिए आ जाएंगे, देख लेंगे। How much does the top of the building move in the wind? This is an easy question to answer. Everybody will answer. How much does it move in the top wind? 1.5 meters. 1.5 meters. नहीं, मैंने कहा था यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि एनालिसिस नहीं करना था। How many people live and work there? Again, it's an easy question to answer. How many people live and work there? There are 12,000 people lives and work there. Language problem. there Language problem. No, language problem. Repeat your answer. देखो जैसे मैंने कहा ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम, रिपीट योर आंसर, वो चुप हो गए। there अब क्या कर रही होंगी? हो सकती हैं, बोलो 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 आफरीन बोलो। there are 12,000 people lives and works. Okay, ठीक है। Somebody else would like to try? How many people live and work there? 12 people live and work there. Yeah, कितने कहा बेटा? 12,000. 12,000 people. Yes, that's right. 12,000 people live and work there. 12,000 people live and work there. How many people What? live and work there? 12,000. 12,000. 12,000. Okay, that's a good answer. अगर आप आफरीन के तरीके से बोलना चाहते हो, there are 12,000 people, तो there are 12,000 people की हिंदी क्या हुई बेटा? यहाँ 12,000. 12,000 लोग हैं। Yeah. सेंटेंस कंप्लीट है। अब आप उसमें लिव कैसे डाल सकते हो? आगे आगे कैसे लिव बोल सकते हो? आपको एक सब्जेक्ट चाहिए। There are 12,000 people who live and work there. There are 12,000 people who live and work there. अब समझ में आ रहा है? There are 12,000 people live and work there. नहीं समझ में आएगा, कोई कनेक्शन नहीं है। There are 12,000 people, the sentence is complete. 12,000 लोग हैं जो काम करते हैं, who live and work there. आपको एक सेंटेंस खत्म होने के बाद लिव के लिए कोई सब्जेक्ट तो चाहिए ना। There are 12,000 people who live and work there. अगर देर से बोला नहीं तो सिंपली how many people live and work there? 12,000 people. Yeah, there are 12,000 people. फिर live अगर जोड़ना चाहोगे then you have to say who live and work there. I have a cousin
who lives with me. There is, I have a cousin lives with me. बोल सकते हैं क्या? I have a cousin who lives with me. अभी ऐसे बोल सकते हैं my cousin lives with me. बात कर रहा हूं my cousin, ये अलग सेंटेंस है, फिर सब्जेक्ट वर्ब आ गया. तो अरेंजमेंट पे ध्यान देना है आप लोग को, धीरे धीरे आएगा. यहाँ कोई गलती नहीं है, कुछ अजीब नहीं है. ये लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है. ये गलतियां नेचुरल हैं. आफरीन से जो गलती हुई नेचुरल है, इसमें कुछ अजीब नहीं है. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लर्निंग. होता है, सीखते हैं गलतियां करके. इज इट हॉटर एट द टॉप और एट द बॉटम? It is at the bottom. It is it hotter at the top or at the bottom? हाँ, अगर शॉर्ट आंसर करना चाहे तो कैसे देंगे? नहीं, इज इट हॉटर एट द टॉप और एट द बॉटम? बस शॉर्ट आंसर दे देंगे. एट द टॉप या एट द बॉटम, दोनों में से कोई भी आंसर दे देंगे. ये शॉर्ट आंसर हो गया. गलत सही की बात नहीं कर रहा. शॉर्ट आंसर कैसे होगा? एट द टॉप, एट द बॉटम, बस सही आंसर है. लेकिन सेंटेंस में आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे? इज इट हॉट एट द टॉप और एट द बॉटम? आप लोग के लिए लैंग्वेज लर्निंग बहुत चैलेंजिंग काम बनता जा रहा है, क्योंकि आप, हाँ, यस यस आफरीन, आप एकदम नया लाने चाहते हो. कुछ कुछ नहीं, सामने से जो बोला वही बोलना है. इज इट हॉट एट द टॉप और एट द बॉटम? यस आफरीन बेटा. It is at the bottom, sir. क्यों आप ऐसे बोल रहे हो? आप मेन वर्ड को हटा दे रहे हो. इट इज हॉटर नहीं बोल रहे हो, और आपके दिमाग में It चल is रेपिटेशन hotter ऑफ at the top, at the bottom. तो आप हॉटर हटा के कैसे बोल सकते हो इट इज एट द बॉटम? ये क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है? एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या आप? Bottom. अगर आपसे कोई नेचुरल सवाल पूछता है आप हिंदी में, कहाँ ज्यादा गर्मी है, ऊपर के नीचे? ज्यादा गर्मी नीचे है. ज्यादा गर्मी ऊपर है, ऐसे कुछ ना बोलेंगे. इसमें कुछ अजीब लगा मुझे. एक्सपेरिमेंट का ख्याल आ रहा है मुझे कि कहीं एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. आपको सबसे पहले भाषा को नेचुरली लेना चाहिए, मानना चाहिए कि ऐसे हम भाषा के, हम लोग रोज इस तरह की बातचीत करते हैं. पहले ऐसा दिमाग में रखना होगा, फिर आप जवाब दे पाएंगे. जो गलतियां कुछ आज हुई हैं वो अजीब है. पहले तो हमारी प्यारी यू नो क्या नाम है, रुखसार, वो तो मेरा दिमाग हिला दी है, सच बता रहा हूँ आज. क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि वहां पर वो टाइपेई 101 को कन्वे एकदम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे. मैंने सोचा था कि ए एंड बी का एग्जाम्पल देके मैं वहां ले आऊंगा. बात समझ में आ रही है? मैं वहां तक हिम्मत नहीं हारा था. इज ए इज टॉलर देन बी, मैं समझा कि हाँ ये बोल देंगे ए बी से लंबा है. जब मैंने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन करवा लिया, तो आज वो मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं दिए एक तरह से देखा जाए तो. और आई एम फीलिंग द प्रेशर ऑफ दैट, क्योंकि मुझे पता है मुझे इसको सिखाना है, और मुझे ये भी पता है कि कहाँ मुश्किलात आ रहे हैं. और इसकी सबसे बड़ी वजह है रुखसार का एक चीज का ख्याल नहीं रखना, कि वो कोशिश नहीं कर रही है सीखने की, वो कोशिश कर रही है जवाब देने की, कोशिश कर रही है बोलने की. मैं आपको बता रहा हूँ ये सब नेचुरल प्रोसेस है, बोलना और जवाब देना. आपको कोशिश क्या करना है कि आप वहां क्या लिखा आपको दिमाग में जाना चाहिए मैसेज. तो थोड़े आज का दिन फ्रस्ट्रेटिंग रहा है मेरे लिए, नो डाउट अबाउट इट. और फिर आफरीन एक्सपेरिमेंट मारे जा रही है लगातार. कह रही है इट इज एट द बॉटम, इट इज एट द टॉप. अब मैं क्या बोलूं? इज इट हॉटर एट द टॉप और एट द बॉटम? सीधा बोले यार, एट द बॉटम. शॉर्ट में बोलना है एट द बॉटम. इट इज हॉटर एट द बॉटम. दैट्स वेरी इजी. And for some people, just this. The most difficult parts weren't because of the height, but because of the winds. तुमने डिजाइन को कैसे बताया? There were a lot of problems with the design. There were a lot of problems with the design. उसके बाद क्या लिखा है? The most difficult parts weren't because of the height, but because of the winds. तो ये सारे सिर्फ शब्दों को दिमाग में नहीं रखना, बात समझनी है, बाद में किसी को बताना है. यू नो व्हाट, व्हेन दे वर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, द बिगेस्ट चैलेंज वाज नॉट द हाइट, द बिगेस्ट चैलेंज वाज द विंड्स.
The top of the building moves 1.5 meters in high winds. So the biggest challenge was the winds, not the height. Because when the winds were strong, the structure moved 1.5 meters at the top. 1.5 meters is this much. Okay, from here to here. So you can understand that the lower parts also moved a little bit. So the biggest challenge was this winds. Whenever there were great winds, strong winds, high winds, the structure moved. So building a structure which is moving is easy. You're putting cement on something that is moving. तो एक थोड़ा इमेजिनेशन भी यूज करना पड़ता है इन सब चीजों को समझने के लिए. आप किसी ऐसे बच्चे को दे दो जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, बिल्डिंग कैसे बनती है, कुछ नहीं आइडिया है, तो उसको क्या समझ में आएगा क्या चैलेंज था, नहीं चैलेंज था. Natural thought that when you are building a tall structure like Burj Khalifa, the biggest challenge would be the height. No, natural thinking, उतना ऊंचा कैसे जाएगा, सवाल यही मन में आता है ना. But this was not the biggest challenge. It's clearly written. The most difficult parts weren't because of the height. ये लाइन लिखने की वजह क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? Height was the biggest challenge. But the most difficult parts, सबसे मुश्किल हिस्से जो काम के थे, weren't because of the heights, but because of the winds. तो कुछ बातों को एड्रेस कर दिया जाता है. जैसे ये लाइन लिखने का क्या मकसद होगा कि weren't because of the height. डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा? Because of the wind. Because anybody would think, इतना ऊंचा कैसे सीमेंट लेके जाएगा यार, इतना ऊंचा कैसे छड़ लेके जाएगा यार. But coincidentally, today we have the technology to take care of these things, okay, height and all. But the winds, when the structure is moving, how do you put? All right, so the wind was the biggest problem. Okay. Homework for tomorrow. Listening section. I worked in Dubai. अच्छा याद रखना, ये जो भी माहौल आज था और जो भी आप लोग से गलतियां हुई हैं, ये सब सीखने के ये दरमियान होता ही होता है. आप इसको अजीब ना समझें, खाली एक चीज को गलत समझें कि जब आप इस बात पे फोकस करते हो कि आपको आंसर करना है, चाहे कॉपी पेस्ट ही क्यों ना हो, सीखने के बजाय वहां पे आपको रोकना है अपने आप को. यू हैव टू ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज. आंसर अपने आप आएंगे और वो आंसर नेचुरल होंगे. एंड व्हेन यू हैव दिस हैबिट ऑफ cutting pasting, copy pasting, you're not going to learn much. Fine. Listening section will be your homework for tomorrow. We couldn't be very productive. I was thinking we would read the text as well today, but we couldn't do that. Never mind. I'm going to share with you the audio file which Afreen was looking for yesterday. Afreen, you wanted the audio file, right? Yes, sir. You wanted the audio file for a reading text, No. huh? No, sir. All right, I'm sharing today. And listen, this is going to be even more challenging. This is going to be even more challenging, guys. The listening section. I know this text is a bit challenging. In every class, I have experienced that. Okay, see you all tomorrow. Bye-bye. Do your best. Bye, Good sir. day. Bye-bye. Bye-bye.